Am I audible properly to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Write down the topic for today's lecture, that is actors in technology environment. Actors in technology environment. Can anybody within this group define knowledge and its type? Can any one of you define knowledge? Type of knowledge? Afreen, Yes, sir. knowledge or types of knowledge? Ideas, theoretical or practical understanding of subject. Neha Shukla. Okay, see, knowledge can be termed as the know-how of something. Okay, and can be divided into two different aspects: tacit part and the codified part. What is the tacit part of our knowledge? Tacit part of our knowledge. Atul, what can be termed as tacit part of our knowledge? Karuna, Harsha, Harneet, what can be termed as the tacit part of our knowledge? Purvi, So tacit part maybe which is actually being grasped by the person or utilized okay, later. tacit part. And what is codified? Um, no idea, sir. Okay, see, the knowledge which is kept in our own mind, which we have not disclosed to anyone, is termed as tacit knowledge. ठीक है? Now, if you keep yourself acquainted with something and if you don't discuss it with anyone, is it possible to create any kind of technology or any sort of innovation? No, sir. No, sir. Okay, so No, sir. see, this is the basic problem which we are facing right now. I think you might be knowing that our country is the third largest producer of graduates among the world after US and China. ठीक है, पूरी दुनिया में हम जो है आज तीसरे नंबर में है ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने पे। लेकिन अगर आप इनोवेशन की बात करेंगे, अगर क्रिएटिविटी की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से आजादी के बाद से अभी तक में हार्डली हमको कोई नोबेल प्राइज मिला होगा क्रिएटिविटी के लिए या इनोवेशन के लिए। तो इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या ऐसा रीजन है कि जो नॉलेज है वो क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहा है? अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी नॉलेज हमारे अंदर है, हमको कभी ये बताया ही नहीं जाता कि उसको किस तरीके से आप कोडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट जो टॉपिक है वो अपराजिता मैडम ने आपका कवर कराया है। उसका एक छोटा सा पार्ट था, दैट इज एक्टर्स इन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पार्ट, और एक था आपका चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। ये दो चीज उसमें से छूटा हुआ था जो मैं आज कवर कर रहा हूं। एक्टर्स इन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट ये बताता है कि लोग अपने नॉलेज को अगर अपने पास ही रख लेंगे तो कभी भी क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप नहीं होगी और ना वो नेशन कभी प्रॉस्पर कर पाएगा। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जरूरी है जहां पर जो भी नॉलेज आपके पास है, वट एवर नॉलेज, वट एवर क्रिएटिविटी इज कमिंग टू योर माइंड, आपके पास ये सुविधा होनी चाहिए कि उस क्रिएटिविटी को आप प्रोपोगेट करें। ठीक है,
और इस प्रोपोगेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो एक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत एग्रेसिवली जो प्रोपोगेशन ऑफ क्रिएटिविटी है उस पर काम कर रही है। और ये प्रोपोगेशन ऑफ क्रिएटिविटी पे काम सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की किस तरीके से कर रही है, जो हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट था जो पहले सिर्फ सपोर्टिव एक्टिविटी करता था, इट वाज डूइंग ओनली सपोर्टिव एक्टिविटी फॉर स्मॉल मीडियम टाइप ऑफ फर्म्स, नाउ इट इज प्रोवाइडिंग इंक्यूबेशन फैसिलिटी, it is providing funding for incubation. That means if you have some new idea, the government of India is trying to convert that idea into a workable business. The government of India is trying to convert that idea into a workable business. See, there are two things which are very helpful in propagation of knowledge or propagation of idea. The two important aspects in our society are developers and facilitators. ठीक है, we can term some of the organization as developers and some of the organizations as facilitators. For example, DRDO can be termed as a developer. DRDO को हम किस तरीके से देख सकते हैं, एक डेवलपर के रूप में। हमारे देश की जितनी IITs हैं they can be termed as डेवलपर्स। ठीक है, माइक्रो स्मॉल जो मीडियम सेगमेंट की इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले लोग हैं दे कैन बी टर्म्ड एज इंक्यूबेशन सेल, कैन बी टर्म्ड एज डेवलपर्स हु आर फैसिलिटेटर्स। ठीक है, फैसिलिटेटर्स में वी हैव टू टाइप्स, प्राइवेट एंड पब्लिक। द प्राइवेट फैसिलिटेटर्स आर ग्रुप ऑफ फर्म्स व्हिच सपोर्ट इनोवेशन फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, and public is the government of our country or the government of our state. If we find like a particular kind of innovation may lead to a competitive advantage, the organization means a private organization or the central government start investing on that particular proposal. The benefit which the private companies or the government get is quality of life, more business, more number of exports. That means it is a win-win situation. The moment they are supporting an idea, the idea will help them to make money. ठीक है, now this particular type of environment has been fostered in last 10-20 years. Before that the entire education system was just promoting clerks. ठीक है, जब अंग्रेज यहां से गए तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग जो है वो बहुत अच्छे वर्कर्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि दे इम्पोज्ड अ काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो हमको एजुकेट तो कर रही थी बट क्रिएटिव नहीं बना रही थी। ठीक है, हम जब बचपन में स्कूल ज्वाइन करते हैं तो हर बच्चे को एक ही चीज पढ़ाई जाती है। जब तक एक ही चीज लोग पढ़ेंगे तो क्रिएटिविटी का जो एस्पेक्ट है वो बहुत नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से A for, the answer will be, if I ask you a question, A for Apple. Apple. yeah, 80 among 88 within this group 80 will respond as Apple. This is how we are taught. ठीक है, ये तरीका है जिसपे हमको पढ़ाया जाता है, बट ये क्रिएटिविटी को तो फॉस्टर नहीं करता। until we give different options to the students they cannot think of creativity. और जब तक वो क्रिएटिविटी के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक इनोवेशन पॉसिबल नहीं है। अगर सारे बच्चों का सोच, सारे साइंटिस्ट का या रिसर्चर्स का सोच जो है वो एक क्लोज्ड बॉक्स होगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया के आसपास ही घूम रहा होगा, so it is very tough for a country to foster innovation. इनोवेशन करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और इस इनोवेशन को आइडेंटिफाई करना और इस इनोवेशन को प्रोपोगेट करने के लिए आज जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। अब धीरे धीरे करके एक नया जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता जा रहा है, स्टेट में भी, सेंट्रल लेवल पे भी, जहां पर अब हम रिसोर्स बेस्ड जो बिजनेस था, जो पुराने कंसेप्ट थे बिजनेस के, उसको एक किनारे रख रहे हैं और हम धीरे धीरे करके जो क्रिएटिविटी बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, वहां पर जाने की कोशिश
कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज जो है ग्रुप में अभी पीयूष ने डाला था, मैं उसको पढ़ रहा था। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्या हमें अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पीयूष ने उस ग्रुप में लिखे हैं। आपको पता होगा बेटा कि देयर वाज अ टाइम व्हेन द IBM ग्रुप वाज डोमिनेटिंग द एंटायर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो। एक समय था जब IBM ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप था, ठीक है, जो कंप्यूटर्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता था थ्रू आउट द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कंपनी यही थी, ठीक है। और उस पर्टिकुलर समय में बहुत सारे लोग जो है वो चिप लेवल पर का काम कर रहे थे, जिसमें इंटेल भी एक था, ठीक है। तो ये जो कंपनी है IBM, इसने इंटेल को कहा कि व्हाई नॉट यू सेल योर शेयर्स टू मी, ठीक है, और क्यों आप हमारे साथ नहीं जुड़ जाते, हम आपको पूरी तरीके से एक्वायर कर लेंगे। लेकिन इंटेल को क्योंकि अपने इनोवेशन पर भरोसा था, उसको पता था कि अगर वो मेहनत करे तो उसको किसी के भी साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि इतने समय के बाद आज इंटेल जो है वो एक ऐसी कंपनी है, दुनिया की कोई भी कंप्यूटर बेचने वाली कंपनी हो वो लिखती है पावर्ड बाय इंटेल। इंटेल को किसी ने नहीं खरीदा, बल्कि इंटेल को सब यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स अ कॉमन डेवलपर, ठीक है, डेवलपर कॉमन है। और जितने भी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग इंटेल को ग्रुप में पैसा पे कर रहे हैं कि आप डेली बेसिस पे और अच्छे इनोवेशन करिए ताकि हमारी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ पाए, ठीक है। ये चीज फॉस्टर जब होने लगेगी तो कोई भी देश जो है वो प्रॉस्पर करने लगता है, ठीक है। नाउ राइट डाउन, इसी का एक सब टॉपिक है, दैट इज इनोवेशन नेटवर्क। Innovation network. Now, when we talk about innovation network, we must know that what innovation network is. We have to identify that innovation is something जिसको आप किसी एक जगह पर रोक करके नहीं रख सकते। आपको इस इनोवेशन को करने के लिए कहीं ना कहीं पर सबसे जा करके जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ताकि इस इनोवेशन का फायदा सारे लोग ले सके, ठीक है। इज द स्लाइड विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. ठीक है। Now, in actors of technological environment, if we talk about the network of innovation, see what government is doing right now, creation of new knowledge, ठीक है। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो आज की डेट में ह्यूज फंडिंग कर रही है, ठीक है। आपको शायद पता होगा हमारे BIT को भी एक इंक्यूबेशन सेल के रूप में चुना गया है, एंड द गवर्नमेंट विल स्टार्ट फंडिंग विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। इस इंक्यूबेशन सेल को डेवलप करने के पीछे, प्योर रिसर्च को लाने के पीछे जो गवर्नमेंट की मंशा होती है या जो प्राइवेट, आप देखिएगा जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे हैव देयर ओन एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। सारे बड़े इंस्टीट्यूशन के कॉलेजेस हैं ना, भारत में आप देखिए रिलायंस का अपना कॉलेज है, बिरला का अपना कॉलेज है, टाटा का अपना कॉलेज है, ठीक है। व्हाई दिस इज लाइक दैट? बिकॉज नॉलेज इज फ्री एंड नॉलेज कैन बी डेवलप्ड बाय एनीवन। ये किसी से भी ये नॉलेज जो है उसका क्रिएशन या डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। इस नॉलेज को जैसे ही डेवलप होता है, इसको एक अप्लाइड रिसर्च की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो इस नॉलेज को एक स्वरूप दे सके, ठीक है, इस आइडिया को एक वर्केबल मॉडल में कन्वर्ट कर सके। और इस अप्लाइड रिसर्च में बहुत खर्चा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों तरीके के एक्टर्स होते हैं। प्राइवेट एक्टर्स भी होते हैं जो बिजनेस को बेटरमेंट के लिए खर्च करते हैं, या फिर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं या यूनिवर्सिटीज की फंडिंग होती है जो क्या करते हैं कि इस नॉलेज को एक अप्लाइड रिसर्च में, एक ऐसा किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जनरेट करने में यूज करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, उस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को किसी एक पर्टिकुलर तरीके की सर्विस में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और कमर्शियलाइज किया जाता है, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को समझ करके एक प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप किया जाता है,
आप देखेंगे बेटा कि उतने ही दूर तक एक प्रोडक्ट जो है वो ट्रेवल करता है और हमारे लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर हर चीज का कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव यूसेस तो है, बट इट हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ आवर लाइफस्टाइल। एक समय था जब लोग जिंदगी भर जब काम करते थे तो वो दो ही चीज खरीदते थे, या तो सोना या तो जमीन। ठीक है, या तो फिर दे वेर परचेजिंग गोल्ड, जब पैसा होता था कुछ गोल्ड खरीद करके रख लिया, या तो फिर क्या करते थे कुछ जमीन खरीद करके रख लिया। बट आज के दिन में हम लाइफस्टाइल पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइफस्टाइल क्या है? ये लाइफस्टाइल है वो सारे सुख सुविधा के सामान जो हमारे डे टू डे लाइफ को और बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, अब इन चेंजेस को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट type of change is induced change and the second type of change is autonomous change। ठीक है, ये induced change क्या होता है और autonomous change क्या होता है, ये environment के पैरामीटर से हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, when we talk about induced change, ठीक है, induced का मतलब क्या होता है? What is the meaning of induced, Subarna? The force change. हाँ बेटा, Force change which has been. force change, okay, okay. Any example of induced change? Any example of induced change? I think you have read about induction motor. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कोई है क्या? Yes sir. Yes sir. साइंस बैकग्राउंड वाले 11th में भी पढ़े होंगे Yes sir. इंडक्शन। ठीक है, नाउ दैट सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। आई थिंक द स्लाइड इज विजिबल टू यू ऑल। Yes sir. Okay, so in an environment, induced change means changes induced by forces such as demographics, such as lifestyle in macro environmental segments other than technological environment। तो हमारे जो मैक्रो एनवायरनमेंट के सेगमेंट हैं उसमें उसके कारण जो चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, उन चेंजेस को हम किस तरीके के चेंजेस के रूप में देखते हैं? इंड्यूस्ड चेंजेस के रूप में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक समय में जो हमारे इंडिया का डेमोग्राफी था, ठीक है, जो हमारी इंडिया की ज्योग्राफिकल एजाइलिटी थी, उसके कारण कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था। किस चीज के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के मींस पे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था और यहाँ पर लोग जो हैं छोटे छोटे जगह पर अलग अलग तरीके से रहते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा मींस तैयार करना किसी प्राइवेट फर्म के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था और रिटर्न बहुत कम था। उस पर्टिकुलर कंडीशन ने हमारे देश में जो रेलवेज है उसको पब्लिक सेक्टर बनाया। आप जानते हैं ना, बहुत से देशों में रेलवेज जो है वो प्राइवेटाइज्ड है। इज इट? समझ में आ रहा है जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? हमारे देश में लोग बहुत ज्योग्राफिकली अपार्ट रहते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या जो नॉर्थ 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर, वहां से लेकर के गुजरात तक, ठीक है, तो राजस्थान तक, ये जो एजाइलिटी थी उसके कारण जो कम्युनिकेशन हमारे को स्टैब्लिश करना था, जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हमको स्टैब्लिश करना था, उसमें सबसे किफायती जो इन्वेस्टमेंट था दैट वाज रेलवेज। ठीक है, लेकिन इस रेलवेज का आज से 100 साल पहले प्राइवेटाइजेशन इसीलिए नहीं हो पाया, उसका रीजन ये था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इतने फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप में बिजनेस नहीं डालना चाहेगी। वो हर समय वहां पर बिजनेस डालने की कोशिश करेगी जहां पर उसको जल्दी से रिटर्न मिले। ठीक है, तो आज जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है एक सीन
कि रेलवे जो है इट इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और उसको अपना फायदा सोच करके बिजनेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको लोगों की स्थिति को देखते हुए टिकट्स के रेट को रखना चाहिए, ठीक है, लोगों के पॉकेट्स को देखते हुए, बिकॉज द वेरी सेम टाइम ड्यू टू अ सोशल कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड। हमारी डेमोग्राफी, हमारी जो उस समय की अर्निंग का लेवल था, ठीक है, हमारी जो उस समय की डोमिनेटिंग इंडस्ट्रीज थी, लाइक एक बहुत बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर होता था और इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, तो लोगों के पास पैसे भी बहुत कम होते थे। ऐसे समय पर इट वाज वेरी टफ कि कोई प्राइवेटाइज कर दे रेलवेज को और लोग जो है आसानी से इसका उपयोग कर लें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडाइज रेट में लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देना शुरू किया। इंड्यूस चेंज समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड जो पैरामीटर है उसको हम बोल सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। आपको पता होगा 2G 3G स्कैम हुआ था, बार बार न्यूज में आता रहता है ना, 2G स्कैम 3G स्कैम। किसी ने सुना है नाम टेलीकम्युनिकेशन में? निखिल, निखत, नेहा शुक्ला, निशा, सुना है ना? ये 2G स्कैम में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने कुछ रेड टैपिज्म के कारण कम कीमत में जो स्पेक्ट्रम थे उसको सेल आउट कर दिए। 2G का जो स्पेक्ट्रम था उसको बहुत कम कीमत में प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल आउट कर दिया। इस स्कैम का एक पहलू तो यह है कि इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बहुत बड़ा लॉस हुआ। इट वाज अ ह्यूज लॉस टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। लेकिन इसके अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की हम कोशिश करें तो इसने बहुत कम इनकम वाले आदमी के हाथ तक भी टेलीकम्युनिकेशन को पहुंचा दिया, ठीक है। कॉलिंग को कीमत कम करना, लोगों के हाथ तक मोबाइल पहुंचने के पीछे भी यही सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। पॉलिटिकली इसको जो कम कीमत में स्पेक्ट्रम बेचा गया उससे क्या हुआ, रिलायंस जैसी कंपनियां थी जिसने बोला आप 300 का रिचार्ज करिए, 24 घंटे बात करते रहिए, ठीक है। इतने कम में उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा था कि वो 24 घंटे फ्री रखने पर भी उनको नुकसान नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे करके टेलीकम्युनिकेशन जो है, मोबाइल कम्युनिकेशन खास करके जो है, वो हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया। इंड्यूस चेंज बाय अ पॉलिटिकल सिनेरियो, ठीक है। एक पॉलिटिकल सिनेरियो के कारण एक ऐसा चेंज जो कि इंड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड मैंने लिखा है टाटा नैनो, इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाटा नैनो। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि टाटा नैनो कैन बी अ कार जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। और टाटा ने क्या की, इस गाड़ी को बना लिया। ऑल्दो देयर वाज सम मिसकैलकुलेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और टाटा ने जितना सोचा था कि उसको फायदा होगा उतना फायदा टाटा को नहीं मिला। लेकिन इंड्यूस चेंज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा चेंज है जो कि सोशल इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, या हम बोलें कि मैक्रो इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स के कारण हमारे लाइफस्टाइल में आता है और एक पर्टिकुलर तरीके की टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक समय में इंडिया जैसी कंट्री में जॉइंट फैमिलीज थी। इट वाज इम्पॉसिबल कि एक छोटी सी कार खरीद लें और हम सारे लोग उस पर जर्नी कर सके, ठीक है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण आप देखिए हर घर में एक अलग से गाड़ी हो गई है, क्योंकि मेंबर 4 हैं। एक छोटी गाड़ी भी आदमी खरीदता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकता है। और ये न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट आने से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो कि पैसेंजर कार की थी उसको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया इंडियन मार्केट के अंदर। लोग तेजी से गाड़ियां खरीदने लग गए, ठीक है। यूज ऑफ थिंग्स लाइक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यूज ऑफ थिंग्स लाइक योर वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स, ये कहीं ना कहीं पर हमारी लाइफस्टाइल में चेंज होने के कारण हमने क्या किया, इनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जब भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, और उसके कारण अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी किस तरीके की टेक्नोलॉजी होगी, इंड्यूस चेंज की।
अभी बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास कोरोना के समय है, सैनिटाइजर्स का यूज तेजी से बढ़ा, मास्क का यूज तेजी से बढ़ा, ठीक है। आज से 2 साल पहले क्या हमने कभी सोचा था कि सैनिटाइजर जो है वो हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा? नो ना। सर। तो जब जब ये चेंजेस आते रहेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट में, और इनके कारण हम कोई भी टेक्नोलॉजी को, कोई भी क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करेंगे, तो दैट टाइप ऑफ एडॉप्शन विल बी टर्म्ड एज इंड्यूस्ड एडॉप्शन या इंड्यूस्ड चेंज। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। द सेकेंड पार्ट इज ऑटोनॉमस चेंज, ठीक है। ऑटोनॉमस चेंज क्या होता है? देखिए, जो ऑटोनॉमस चेंज है वो बताता है कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ठीक है। दे गो आउट ऑफ द कन्वेंशनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडस्ट्री एंड दे ट्राई टू डेवलप समथिंग न्यू, और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये डेवलपमेंट हो पाएगा तो ये भविष्य को डोमिनेट करेगा, ठीक है। इस डेवलपमेंट के बाद जो पूरा भविष्य है उसको हम डोमिनेट करने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? एक बिजनेस ऐसा क्यों सोचता है? सबसे पहले तो हम ये भी समझे, इसके लिए एक थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, या लॉन्ग वेव थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक चेंज। ये बताता है कि पहला फेज जो होता है किसी भी डेवलपमेंट में, दैट इज द फेज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। हम सबसे पहले फेज में जाते हैं जहां पर हम कोई ना कोई नई चीज को डिस्कवर करते हैं। आफ्टर डिस्कवरी व्हाट वी डू, वी कम टू द सेकेंड फेज, जहां पर इस डिस्कवरी को डिस्कवरी इज कन्वर्टेड इनटू सम टाइप ऑफ इनोवेशन, ठीक है। और इस इनोवेशन को अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो यूज करना शुरू कर देती है। बेटा मैं पीपीटी शो ही नहीं कर रहा हूं अभी, you are continuously typing PPT is not visible. I am not showing any kind of PPT. I am just discussing about a case study जहां पे आप ये समझ पाए कि इंड्यूस चेंज और ऑटोनोमस चेंज होता क्यों है, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन जो है वो इस लॉन्ग वेव थ्योरी, जो इकोनॉमिक चेंज की जो लॉन्ग वेव थ्योरी है, इसको समझने की कोशिश करता है कि हर चीज जो है किसी तरीके की डिस्कवरी से शुरू होती है। डिस्कवरी कन्वर्ट्स इनटू इन्वेंशन या इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन कन्वर्ट्स इनटू अ मैच्योर टेक्नोलॉजी। एक समय में क्या होता है, जो चीज आज नया है आज से 10 साल के बाद एक मैच्योर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये मैच्योर टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी अपने आप में पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगी, जब उसमें और किसी तरीके के नए इनोवेशन की जगह नहीं बचेगी, तो व्हाट विल हैपन, सम न्यू टेक्नोलॉजी विल कम टू द मार्केट, और पुराना जो है उसका सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके एब्सोल्यूशन में चली जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ एवरी मार्केट कंटिन्यूज, ठीक है। तो हर मार्केटर ये जानता है कि आज जो चीज इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है, वट एवर टेक्नोलॉजी इज डोमिनेटिंग द करेंट इंडस्ट्री विल नॉट डोमिनेट द इंडस्ट्री फॉर एवर। कहीं ना कहीं पर जाकर के इसको मैच्योर होना है, और इस मैच्योरिटी के बाद किसी नई टेक्नोलॉजी को आकर के जगह लेना है। तो जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली कुछ नए तरीके के जो प्रोडक्ट है, कुछ नए तरीके के जो सॉल्यूशंस है, उनको डेवलप करते रहते हैं फ्यूचर को आंसर करने के लिए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर 10 इयर्स, व्हाट आफ्टर 20 इयर्स, व्हाट आफ्टर 30 इयर्स। इस तरीके की सोच जो है हर विजनरी में होता है, ठीक है। और ये सोच ही कहीं ना कहीं पर उनको नई चीजों को अडॉप्ट करने की तरफ लेकर के जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बैठ करके नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और किसी ने बैठ करके सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब हमने एक इनोवेशन किया कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है हम उसको एक नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, इसकी तरफ चले गए, ठीक है, और डेवलपमेंट शुरू हो गया। आज से 30 साल पहले जब ये डेवलपमेंट हो रहा था, तो क्या हमने सोचा था कि इस चीज का यूज ऑनलाइन क्लास लेने में या बैंकिंग के पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करने में हम करेंगे? आज जो आपका ऑनलाइन बैंकिंग है ये भी कहीं ना कहीं पर डेवलप हुआ होगा ना, कभी ये एक इनोवेशन के रूप में रहा होगा।
आईटी के प्लेटफॉर्म में आकर के ये चीज जो है वो ग्रो किया होगा। और आज हर एक बैंकिंग इंडस्ट्री जो है क्या कर रही है, धीरे धीरे करके आईटी प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अपग्रेड कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स जो पुराना बैंकिंग का तरीका था वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूशन में चला गया और एक पूरा नया तरीका जो है बैंकिंग का आज हमको दिखने लग गया। ठीक है, आज मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग जो है वो हम ज्यादा यूज करते हैं। हमारा जो मोबाइल फोन है उसमें आने वाला एसएमएस ही हमारे लिए क्या है, हमारे बैंक का पासबुक बन गया है। हार्डली भी अपडेट अवर पासबुक। ठीक है, एक समय ऐसा था आदमी हर महीने जाकर के अपने पासबुक को अपडेट करवाता था। ठीक है, तो जब किसी ऐसे टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं जो अपने आप में नया डेवलप हुआ हो और उसकी इतनी खूबी हो कि लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, उस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसका डेवलपर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी तो ये एग्जिस्टिंग सारे टेक्नोलॉजीज को पीछे कर देगी और जो नॉन यूजर ग्रुप है या जो किसी दूसरे टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे करके मेरी टेक्नोलॉजी को यूज करने लगेंगे। फिर से पीयूष के एग्जांपल में आता हूं। ठीक है, नोकिया डिड अ टाई अप विद माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नोकिया ने किसके साथ टाई अप किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करने के पीछे लॉजिक क्या था? बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपांशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एज फार एज द यूजर सेगमेंट इज कंसर्न, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स आर विथ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर अगर हम यूजर्स को काउंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, माइक्रोसॉफ्ट के जो छोटे छोटे ऑफिस के पैकेजेस हैं उसके यूजर हैं। कहीं ना कहीं पर नोकिया को ये लगा द मोमेंट आई विल हैव अ गुड टाई अप विद माइक्रोसॉफ्ट, मैं माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी यूजर ग्रुप है उसको सीधी तरीके से टारगेट कर दूंगा। ठीक है, और एक छोटा सा टाई अप जो नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया उसने नोकिया के बिजनेस को 100% से नीचे उतार करके 10% मार्केट शेयर पे ला दिया। ठीक है, क्योंकि नोकिया ने एक इजी स्टेप चुना था कि माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म में चले जाएं और उस पे जो है मोबाइल कंप्यूटिंग का काम हम करें। वेयरएज उसी पर्टिकुलर समय पे जो दूसरी कंपनियां मार्केट में वर्क कर रही थी लाइक सैमसंग, उन्होंने एक नए ऑटोनोमस चेंज को जगह देने की कोशिश की एंड दैट प्लेटफॉर्म वाज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि एंड्रॉइड था, जहां पर हर आदमी को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने की जगह मिल गई। ठीक है, सिर्फ उसको करना यह था कि प्ले स्टोर में जाकर के वो चेक करा ले कि उसका सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। लोग अगर सर्टिफाई कर रहे तो उस सॉफ्टवेयर को वो अपने प्ले स्टोर में रख सकता था, लोग उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते थे। एक ओपन सोर्स इतना बड़ा सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ने एक बना बनाया माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट था उसको एक किनारे कर दिया और आज जो है मोबाइल के अंदर मैक्सिमम जो यूजर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड आर ऑफ एंड्रॉइड कैटेगरी। इज इट? ऐसा ही है ना? है ना बेटा? जो एंड्रॉइड है वो उसने जो अपना डेवलपमेंट है उसको ऑटोनॉमस किया। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट में जरूर डेवलप कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पर पूरे जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें लोगों की सोच जो है उसको कन्वर्ट कर देगा। और आप देखिए जो एंड्रॉइड की सोच थी वो साकार भी हुई। आज की डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स आर ऑफ एंड्रॉइड। ठीक है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होने के कारण, ठीक है, आज एंड्रॉइड में जितनी सारी फैसिलिटी है वो कई बार हमको एप्पल में नहीं मिल रही है, कई बार माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही है, या उनको कहीं पीछे छोड़ करके एंड्रॉइड जो है वो यूजर कैटेगरी को सेटिस्फाई करने के लिए छोटे बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप कर चुका है। वी नेवर नो विच टेक्नोलॉजी विल डोमिनेट द फ्यूचर। ठीक है, तो बहुत से ऐसे ऑटोनोमस चेंजेस भी हमारे एनवायरनमेंट में होंगे। ठीक है, बहुत से इंड्यूस्ड चेंज भी हमारे एनवायरनमेंट में होंगे। ऑटोनोमस चेंज हर समय बहुत रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर डेवलपर जब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाता वो अपने डेवलपमेंट को किसी से शेयर नहीं करता।
लेकिन आप ये चीज भी जानते हैं, बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट, हाई रिस्क हाई गेन। एक बिजनेसमैन जितना रिस्क लेता है उसकी जो गेन है वो भी उतना बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3G से 4G के प्लेटफॉर्म पर अपडेट होना, ठीक है। जब जियो मार्केट में लॉन्च हो रहा था, हम बहुत रिजिड थे कि हमारे पास तो अपना जो एक नंबर है मोबाइल का वो है ही, ठीक है, हम क्यों अपने आप को अपग्रेड करेंगे, क्यों हम नया मोबाइल फोन खरीदेंगे। लेकिन जियो की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश के लिए एक ऑटोनॉमस तरीके की चेंज थी। और आप देखिए एक ऐसा समय आया कि जो नॉन यूजर ग्रुप था एक समय में पूरी तरीके से यूजर कैटेगरी में जियो के कन्वर्ट हो गया। इज इट ऐसा ही है ना? यस सर। ऑटोनॉमस चेंज में या तो बहुत गेन होता है या तो बहुत लॉस होता है, बिकॉज आप इन्वेस्ट करते हो, या तो पूरी पब्लिक क्या करती है आपको एक्सेप्ट कर लेती है, अगर एक्सेप्ट करती है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको जो है एक बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़ता है। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जहां पर इन चेंजेस के साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने धोखा भी खाया है, ठीक है। सो एक कंट्रोल्ड वे में हम इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस चेंजेस का कॉम्बिनेशन लेकर के ही मार्केट को कैटर करते हैं। कुछ चीजें हम लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं, कुछ चीजों को हम लोगों की रिक्वायरमेंट बना देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ कंपनीज और कॉर्पोरेट्स सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है। थिंक the scenario which was there 15 years ago and the scenario which is prevailing right now, what is the difference this telecommunication has given to us? एक टेलीफोन जिसमें 250 रुपए का बिल आने पर भी घर वाले नाराज होते थे, आज एक एक मोबाइल में 2 सिम है और दोनों पे आप 250 रुपए का रिचार्ज करते हो कि कभी इसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं मिली तो दूसरे सिम की फैसिलिटी जो है वो आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। किस तरीके से इन प्राइवेट कंपनियों ने मोबाइल की टेक्नोलॉजी को या इस नेटवर्क को हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बना दिया है। आज हम इसको अपनी लाइफस्टाइल से अलग नहीं कर सकते। आज से 15 साल 17 साल पहले हमको हर एक फोन नंबर जो है वो मुंह जबानी याद होते थे। किसी को भी कॉल करना है हम अपना टेलीफोन उठाए और कट 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 डायल कर लेते थे। आज आपको जो अपने परिवार वालों के नंबर भी ठीक से याद नहीं होंगे। हमारी डिपेंडेंसी को कितना ज्यादा इस मोबाइल फोन ने बढ़ा दिया है। मोबाइल नहीं होने से आपको थोड़ी देर के लिए लगने लगेगा कि कुछ भी नहीं है। हर हमारे यूज की चीज को ये डेवलप करता जा रहा है। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें डेवलप होंगी, द चेंज विल बी इंड्यूस चेंज। और जब अपग्रेडेशन के लिए कोई चीज डेवलप होगी और हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो चेंज कैसा होगा? ऑटोनॉमस चेंज, ठीक है। होप whatever I was clearing to you, okay, I am successful in delivering that. If you have any doubt kindly ask. Induced change, autonomous change, एक आपने और टॉपिक पढ़ा है, मैडम ने क्लियर किया है, that is current development in the technological environment, ठीक है। आपको मैडम ये पढ़ा चुकी है, ग्लोबलाइजेशन, टाइम कंप्रेशन, ठीक है, और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये भी इसी से रिलेवेंट टॉपिक था। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है टेक्नोलॉजी पे? आज ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है टेक्नोलॉजी पे? एनी वन ऑफ यू? निशा, मितेश, अच्छा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? What do you understand by globalization? Any one of you? To expand your business globally, okay, work across the world. Globalization means
वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल विलेज। हम सारे लोग इस यूनिवर्स को हमने एक विलेज मान लिया है, ठीक है, ग्लोबल विलेज के रूप में, और हम सारे लोग इसका हिस्सा बन गए हैं। आप देखिए ग्लोबलाइजेशन का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इफेक्ट क्या हुआ। whatever development you are thinking right now, you cannot think of a development at domestic level. You have to make a product which should be globally accepted. आप एक छोटा सा प्रोडक्ट भी अगर अपने लोकल एरिया में डेवलप करते हो तो लोग उसको दुनिया में सबसे अच्छे प्रोडक्ट के साथ तुरंत कंपेयर करेंगे। दिस इज द इफेक्ट विच ग्लोबलाइजेशन इज हैविंग, ठीक है। और इससे चेंज क्या आया, जो भी डेवलपर है वो आज की डेट में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है। उसको पता है कि अगर उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास नहीं होगा तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड वाज टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, see, try to understand it. For example, think of this particular music systems, ठीक है। Initially we were using gramophones, ठीक है। From gramophones the shift has changed to Blu-ray disc or your pen drive. How much time it has taken, ठीक है। ग्रामाफोन के जो रिकॉर्ड्स हैं आज भी हमारे पास घर में रखे होंगे, या रिकॉर्ड प्लेयर के जो रिकॉर्ड हैं वो आज भी हमारे पास रखे होंगे। ग्रामाफोन से रिकॉर्ड प्लेयर का जो जर्नी है वो 20 इयर्स का होगा। रिकॉर्ड प्लेयर से कैसेट का जो जर्नी है वो भी 20 इयर्स का होगा। कैसेट से जो सीडी की जर्नी थी वो 10 साल की होगी। सीडी से डीवीडी की जर्नी 10 साल की, 7-8 साल की। वहां से ब्लू-रे डिस्क या पेन ड्राइव की जो जर्नी है वो 5 साल की। लोग तब भी म्यूजिक सुन रहे थे, आज भी म्यूजिक सुन रहे हैं, बट द मीडियम विच दे आर यूजिंग इज एंटायरली डिफरेंट। टाइम कंप्रेशन ये बताता है whatever, yes, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सो whatever things you are developing right now बहुत ज्यादा दिन तक ये मार्केट में स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो आपने आज डेवलप अगर किसी चीज को किया है तो आपको आज ही उसके पोटेंशियल को इनकैश करना पड़ेगा। आप इनकैशमेंट के लिए जितना ज्यादा समय लगाओगे उतना कम जो है आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। लोग इसको या तो कॉपी कर लेंगे या इससे बेहतर प्रोडक्ट बना करके मार्केट को अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके। एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू? कोई भी डाउट है तो पूछिए। कोई भी डाउट नहीं है? Should I end my class? Okay. Have a nice day. You can join to the next class, okay? आप यहां से डिस्कनेक्ट होइए और अपने दूसरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। Thank you, sir. गुड डे ऑल। बेटा कोई बाहर मत निकलिए अभी अपने घर से, जरूरत ना पड़ने पर। हमारा शहर जो है वो नंबर 2 पे आ गया है। Yes, sir.